The description of the nature of the study, identifying the study as qualitative or indicating the approach, that is ethnography, grounded theory, and the data collection methods, largely interview methods of that what you have used, and then abstract, that what your study is all about, and in nutshell, you're like in brief, you're talking about your study, what your study is all about, what are your findings, and what does it talk about. The next one is introduction. So in introduction part, you could see easily we have talked about the problem formulation. So we can see that we are talking about the problem formulation here. Description and significance of the problem of phenomenon study. Review of relevant theory and empirical work of problem statement and the purpose of research. ऑनलाइन पे जूम के पार्टिसिपेंट्स कैसे देखेंगे हमारे इसको? पीछे नहीं दिखा? नहीं, पीछे तो दिखेगा जूम पे, सर वी आर ऑन जूम ऑन. Oh, I'll share it with them into the format only. अच्छा. Should I mail you? हाँ, तो व्हाट्सएप हो सकता है क्या? WhatsApp हो सकता है. मेल में नहीं. And this photo. व्हाट्सएप करिए. Share. I hope it is visible at the back. Okay. Okay, so largely this is the format as per which we should report whatever the research we have conducted, talking about our methodology, our purpose of the research, and the research questions that the people have formed. And even we are talking about the researcher characteristics and effectiveness. Largely talking about the qualification and experience, presupposition, potential, actual interaction between researchers, and then picking site and salient contextual questionnaire, that is rationale of the study is also very important. And then the sampling strategy we talked about. So largely we are using theoretical sampling, especially in the grounded theory. But in this, we can go largely for the non-random sampling. Okay, just to clear a few things. When we talk about the sampling part in the qualitative research, please make sure one thing, that random sampling won't help you here. It won't help you. So largely convenience sampling or purposive sampling, and in the cases where there is sensitive data, or you can say the respondents are not easily available. So in that case, snowball sampling is more relevant. Right? So largely we cannot say कि random sampling कर लेंगे, random sampling possible ही नहीं है in actual. ना quantitative research में ना qualitative में technical. And then you have to talk about the ethical issues. Why ethical issues are important? For some reasons. आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अभी कुछ साल पहले एक वजीर नाम की एक आपकी एक आया था. There was a season that came on Wazir, and there was an author जिसने एक realistic story के ऊपर अपना पूरा book लिख दिया था, novel लिख दिया था, and that was super duper hit. But he didn't realize that he has actually revealed the actual characters there. और आपने देखा बाद में उसमें दिखाया है कि उसके जो बच्चे होते हैं, उसके जो बेटा और एक बेटी होते हैं, they are coming back and they want to take revenge. You can say from that particular author, because of that, because their mother committed suicide, father died. उसका सिंपल रीजन ये दे रहा हूं मैं आपको
क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में गए और आप अपनी स्टडी कर रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक अब्यूज पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे या चाइल्ड अब्यूज पे, और आप मान लीजिए उसकी मदर इन लॉ के सामने बैठ के उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, क्या होगा? या आपने बताया कि उसने इंटरव्यू दिया कि नहीं दिया, आपने डिस्क्लोज कर दिया कि दे आर पार्टिसिपेंट, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी एट स्टेक और नॉट? यस, these are some examples of ethical issues. You cannot record anything without the prior permission. इसीलिए आपने देखा है कि आपके कई बारी न्यूज चैनल्स पे भी व्हेन दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यू उनकी आइडेंटिटी को ब्लर कर दिया जाता है, so that we can safeguard their identity, their well-being. So ethical issues are very very important. तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अप्रूवल, तो आपके यहाँ पे एथिक्स रिव्यू बोर्ड होता है जिसको आपको परमिशन आपको लेनी पड़ती है कि हमने सारी गाइडलाइन को क्या किया है, फुलफिल किया है, देन ओनली वी आर कंडक्टिंग इट। डेटा कलेक्शन हम बताएंगे कहाँ से किया, कब किया, कौन सी डेट को आपने स्टार्ट किया, आपका इंटरव्यू का टाइमिंग कितना था। लास्टली यू विल नोटिफाइड ऑल दिस थिंग्स, triangulation of sources and method, modification आपने जो किए, and finally the study के findings और rationale क्या है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ती है। अगर आप देखें तो सारी चीजें हैं, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिट ऑफ स्टडी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस एंड टेक्निक्स टू एनहांस ट्रस्टवर्थीनेस। अब कई बार जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो आपसे रिव्यूअर भी कई बार पूछता है, आपने इंश्योर कैसे किया कि आपकी जो स्टडी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वैलिडिटी के लिए आपने क्या काम किया? Anybody, how to ensure validity in qualitative? क्वांटिटेटिव में हमें पता है क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आपकी कंटेंट वैलिडिटी, कैटेगरी वैलिडिटी, ये सारी वैलिडिटीज भी टेस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी का टेस्ट, रिलायबिलिटी भी करते हैं क्रॉनबेक अल्फा निकाल के। हाँ भाई 0.5 से ऊपर है तो रिलायबल भी है और वैलिड भी है। इसमें कैसे करेंगे? रिपोर्ट्स को पढ़वाने के बैठे हैं और उनसे पूछेंगे कि जो एस्टिमेट निकल के आ रहा है वेदर इट इज ऑन सेम ट्रैक और नॉट, दैट आई वांट टू फाइंड आउट। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे जनरली हम फेस वैलिडिटी चेक करते हैं। तो फेस वैलिडिटी के लिए क्या है कि जो आपने गाइड बनाई है इंटरव्यू के लिए, आप उसमें अपना एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं एंड एज पर द रिक्वायरमेंट देन यू रिवाइज दैट आल्सो सो दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। डेटा एनालिसिस का प्रोसेस भी आप बताते हैं कि आपने किस स्टेजेस में किस तरीके से अपने डेटा को प्रोसेस किया है एंड हाउ यू आइडेंटिफाइड दैट। एंड लास्टली टेक्निक्स का भी आप देखते हैं कि मेंबर चेकिंग, ऑडिट ट्रेल, ट्रायंगुलेशन, रैशनल, एंड लास्ट में आपके रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग्स को किस तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं। तो लार्जली जो पेपर का एक फॉर्मेट होता है, सिमिलरली इस फॉर्मेट को किसी ही आपका आइडेंटिफाई करता है which it talks about. So largely we just follow that so that we can report it appropriately. Now moving ahead, एक और चीज हम यहाँ पर कई बारी just regarding the software part, there is a misconception कि NVivo is a qualitative analysis. मैं अपने आप ही बता देता हूँ, NVivo is just a software, just like SPSS, PLSM, कोई भी आप यूज करते हैं। SPSS is not qualitative research. कई लोग इसे इक्वेट कर देते हैं कि NVivo क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, वो आपको सिर्फ फैसिलिटेट करता है टू एनालाइज डेटा, और उसमें भी एक कैच होता है, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट रेडी नहीं है, द ट्रांसक्रिप्ट्स आर नॉट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, प्रॉपर्ली क्यूरेटेड नहीं है, एंड दैट टू इन इंग्लिश। आज के डेट में थोड़े फीचर्स आ गए हैं कि आप वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें से आप थोड़े से बाइट्स निकाल सकते हैं, बट लार्जली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ये है कि वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा इंटरप्रेट करेगा। ये सारी चीजें आपके काम को फैसिलिटेट करते हैं। वर्ड क्लाउड बनाना क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, ट्री बनाना क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज वेरी डिफरेंट। So please don't get mesmerized or too much obsessed with tools. ये सारा काम आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों लाए गए? जब आपके इंटरव्यूज का साइज ज्यादा है, जहां पे आपके पास एक लार्ज डेटा साइज है, जहां पे आप मैन्युअली थोड़ा पॉसिबल नहीं है,
देयर इट कैन स्टिल हेल्प, लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरीथिंग हैज टू बी रेडी, और वो भी आपको एक हद तक ही हेल्प करेगा। यू शुड नो उसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली कोडिंग आप कर रहे हैं, वो नहीं करेगा, राइट? तो जस्ट टेक हेल्प। आपका क्यूडीए माइनर है, एटलस टीआई है, एनजीओ है, ऐसे बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल। कुछ फ्री भी है, जैसे क्यूडीए माइनर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट कीप इट सेपरेट। तो अभी आपको मैं सिर्फ एक अपना जो शेड्यूल मैंने जो गाइड बनाया था अपने पेपर के लिए, ये ऑलरेडी रिव्यू प्रोसेस में है, तो आई एम जस्ट शोइंग इट। इससे इसके बेसिस पे आप अपना गाइड डेवलप करेंगे, ये आपका पहला एक्टिविटी है मैं क्लियर? आप यहाँ पे देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने पूछा है वर्क लाइफ बैलेंस amongst women amid COVID-19. Interview schedule is intended to know your responses regarding your work-life balance amidst COVID. You are requested to share your frank views, which will help in knowing the issues, fear, or apprehension, challenge, whatever you can name it. The responses shared by you will be kept confidential and meant to be used only for research purpose. So you have to make this declaration. अब आप यहाँ देखिए पार्ट ए लास्ट में, अगर आप देखें तो डेमोग्राफिक चलेगा, मैन से साइज थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन Is it fine? This is part A. अब आप बोलेंगे एक स्टिल मेक सेंस, जहां आपको डाउट लगे चीजें आप पूछिए। मैंने क्वालिफिकेशन भी पूछी है, वर्क एरिया भी पूछा है। आप कब से, अब ये बताइए आपको अकॉर्डिंग क्या लगता है वर्क लाइफ बैलेंस हम किसकी बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन और वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी वुमेन? वर्किंग वुमेन। तो रिस्पॉन्डेंट तो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे पहला। अब आप यहाँ देखिए, हमने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हैं। पहला हमने पूछा एज, क्वालिफिकेशन, दूसरा विच एरिया यू आर वर्किंग इन, दैट मींस इट कुड बी बैंकिंग, इट कुड बी आईटी, इट कुड बी एनीथिंग। आप कहाँ काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर? आपको क्या लगता है इसका क्या फर्क पड़ेगा वर्क लाइफ बैलेंस? पड़ेगा पर्सपेक्टिव। अब आप ये देखिए कि इसलिए मैंने रखे हैं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा हेट्रोजेनिटी मिले अपने डेटा के अंदर। अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्टर से अगर मेरे पास डेटा आता है तो डेफिनेटली आई एम हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब आगे चलते हैं, डेजिग्नेशन लेवल क्या है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, मोड क्या है ऑपरेट का, वर्क फ्रॉम होम, अटेंड ऑफिस, डेली ऑफ टाइम कर रहे हैं, मैरिटल स्टेटस, डज इट मेक सेंस? इट मेक्स ओके। हाउ मेनी इयर्स आर यू बीइंग मैरिड, डज इट रियली मेक सेंस? हाँ ओके। How many children do you have? So number of children also, having children and then number of children. Native of Delhi NCR because population हमारे जो research का scope है that is in Delhi NCR only. And last में native place कहाँ से है? Native place से हम पूछने का क्या मतलब है? Delhi NCR में रहे तो it makes sense. जरूरी नहीं है एरिया भी सेम हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो। नहीं तो Delhi NCR होगी। आपको क्या रेलेवेंस लगता है? ये क्वेश्चन करने का कुछ लॉजिक हो सकता है? रेलेवेंस ये है कि वो वर्क फ्रॉम होम में हो सकता है, घर से देखे वो वहां पे काम कर रहे हो, वहां पे Okay. अलग प्रॉब्लम हो सकती है। Okay, any other thing? Getting placed in type का cosmic community. Just matter being perspective and ideal Agree. Any other thing? Okay, cultural aspect. क्या ये भी हो सकता है कि आप नेटिव कहीं के यहाँ पे आप सिर्फ काम की वजह से शिफ्ट हुए हैं, यू आर माइग्रेट और माइग्रेट है, अगर आपको हो सकता है कि आपके पास शायद खुद का घर है या नहीं है। देखिए इसका मैं आपको बताऊंगा जितने मेरे क्वेश्चन रखे हैं, आपको आप देखिए ना सभी क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। हमारा मेजर टॉपिक क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस। आप मेरा पहला क्वेश्चन पूछते हैं,
You live in nuclear family or joint family? I think it is visible. Okay, great. Does it impact? Okay. How many members are there in your family? Who all are there? What they all do? बच्चों के बारे में मैंने ऊपर ही पूछा है. मैं यहाँ पे भी रिकन्फर्म कर रहा हूँ यहाँ पे. I'm reconfirming also. How many members? 4, 5, 2, 3 जितने भी. कौन है? लोग भी साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं जिसमें फैमिली है. मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं. You have your own house or rented? मैंने आपसे पूछा. लास्ट वाला क्वेश्चन हम याद करिए. मैंने पूछा आप नेटिव हैं? अब यहाँ पे आकर क्या है आपको देखेंगे. यहाँ पे एक हमारी स्क्रीन निकल के राइट है इसमें. The females are sharing financial burden. So there are lot many females. वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए भी आपका हिला हुआ है क्योंकि काम करना मजबूरी है. क्योंकि या तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है क्योंकि या तो अपना घर लिया है तो वो ईएमआई पे है और नहीं है तो वी हैव टू पे रेंट एंड वी हैव टू शेयर द फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज. तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना दे ऑल आर इंटरलिंक्ड. वाई एंड आप देखेंगे इसमें काफी आपको पैटर्न आपको दिखेगा तो शायद आपको समझ में आएगा. एंड आई वांट यू टू आइडेंटिफाई दैट. You have your own house and rented. Are you paying rent or bought your own house in one go? अब आप बोलेंगे वर्क लाइफ बैलेंस से सब दूर कोई नाता नहीं है. Do you share financial responsibilities with your spouse or family members? What kind of financial responsibilities you share? एग्जाम्पल दे सकते हैं लेकिन उसको लीड नहीं करना है रेस्पोंडेंट को कि आंसर उसके मुंह में डालना नहीं. Like something, if they are not getting it, only then. What other kind of responsibility you take care in your house? Example, ये आपके लिए है, उनको नहीं देना है. आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपके लिए गाइड है. Do you manage all of household chores individually or you have hired a secretary to work? This question is clear. Shall we move? Which all works will outsourced and why? ऊपर आप पूछ रहे हो कि आपके पास कोई हाउस होल्ड हेल्प है. अच्छा क्या किया? What are the reasons you need domestic help? What kind of work profile do you have? अब ये क्वेश्चन आप ऊपर भी पूछ रहे हैं ना? You reconfirming. What are the job responsibility you are having? How many people report to you? Now ऊपर आपने नंबर्स पूछे लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहे हैं कि आप क्या काम करते हो, किस तरीके की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की है. Now you are trying to deep dive into it. How do you find a job? ये बताना नहीं है, let them see. लेकिन ये टर्म्स आएंगे आपके पास. Why are you choosing to work and be at home and having a comfortable lifestyle at home? Is it easy to manage home and work for you? How you manage home and work simultaneously? अब हम ये देखिए ये सारी तीनों चीजें क्या कनेक्ट होता जा रहा है, एक पैटर्न बना रहे हैं. Please go. Does it make? What drives you to do so? Is it stressful? कहीं बोलेंगे नहीं, कहीं बोलेंगे हाँ है. You know awareness about COVID. अब मैंने बहुत बाद में पूछा है क्योंकि कोविड के अंदर में वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले 14 जो क्वेश्चन आप देखिए मैंने उसकी जेनरिक लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की. ये क्यों करते हैं हम लोग? So that we can make people little comfortable. We start with generic and then we come to specific things. यहाँ पे शुरू किया. What are views about it? What are the major concerns among COVID? Are you still going to office? ये आप ऊपर भी तो पूछ सकते हैं. हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम होम है, क्या है? आप क्या कर रहे हो? रिकन्फर्म कर रहे हो आप. ये जो डेटा उससे ऊपर भरा है वही नीचे भी है. अब आप यहाँ पे आइए देखिए. How life at home and work? Are you able to cope up with both work and family responsibility? 14% पढ़िए, 18 पढ़िए. पैकेजिंग डिफरेंट है लेकिन बात एक ही.
Am I making some sense? Why I am rephrasing it? For the simple reason, just to ensure that the person whom I am interviewing, he or she is speaking. ऊपर कुछ बोल रहा है, नीचे कुछ बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? वैलिडेट कर सकते हैं ना कि इसका रिस्पॉन्स कितना वैलिड है? Are you getting sufficient support? क्या? So you are getting that receive confirmation section Yes. for validation. आप पूरा जब पढ़ोगे नीचे तक इसलिए मैं लिख रहा हूँ, Okay. तो आप देखेंगे दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आपको कई बार लगेगा ये तो पूछ लिया है ऊपर ऑलरेडी, फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? रिकन्फर्मेशन। There is a question and the writing question that they are not earlier. But okay. There is no harm, and why there is no harm? For the simple reason, so that to understand कि ऊपर जो मुझे नीचे नहीं बोला है, रिकन्फर्मेशन। Affirmation के लिए you need it. अब आप देखिए how is your managing both work and job are able to have work-life balance. अब मैंने work-life balance के बारे में थोड़ा बहुत पूछना शुरू किया है. How are you able to overcome challenges, problems to have work-life balance? Are you witnessing any change in your work routine? आप एक बार मान मुझे जो तो बहुत टाइम Yes. तो अब धीरे धीरे मैंने उसमें जो वो चीजें पूछना शुरू की, which I actually wanted to know. But ऊपर वाले जो questions हैं, they will going to give me the supplement information, which will going to enhance, you can say, my research that I have conducted. बहुत सारी चीजें जब मैं पूछूंगा उनसे रिलेटेड, मुझे वो बहुत सारे फैक्ट पता चलेंगे जो मुझे शायद नॉर्मली आपके कोई भी नहीं बताया। Are we on same page? How easy or difficult is it for you to manage everything, keeping yourself calm and composed? अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी पूछा, ऊपर भी पूछा, इसके ऊपर भी पूछा है, वर्डिंग अलग है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन आप देखिए मतलब वही है। तो ये अगर सेम रास्ता आ रहा है, इसका मतलब क्या है? द आंसर इज वैलिडेटेड, right? What new things you have done or tried during COVID? Any skills? What this pandemic has given you? Learning for life. Negative, positive, they will share accordingly. You might be happy to share more time with your kids and family members. Anything else that you would like to share? लेकिन हमें इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, मैं लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछूं कि जहां पे आप उसको आंसर नहीं बताया जा रहा है। अगर आंसर बता दोगे तो वो वही चीज बोलेगा जो आप सुनना चाहते हो, वो काम नहीं करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है विद अ पोकर फेस एंड लेट हिम और हर आंसर दैट। बिकॉज जब आपके पास अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स आएगा तब आपको अच्छे पता चलेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग इन देयर माइंड, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस। Are we making some sense to it? Yeah. Would you think it's too long? Sometimes people become they start to feel certain level of problems too healthy, and you are asking an interview mode rather than to be tick mode. The interview mode it can be very Okay. So sir is asking if it is too long. Yes, it is too long. But the only thing is, at least to conduct an interview, at least you should give 1 hour to 90 minutes and even more, depending. But they can, let's take example, the first 10 questions they have certain level of interest. But after if they lose the Can I tell you, this has to be very engaging activity. Now this is your art, that how you engage with the respondent. आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें तुमसे डेटा चाहिए इसलिए बैठे हमारे सामने। कई बार आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक विजिट से काम आपको डेटा नहीं मिलेगा। आप एक दिन गए, आपने थोड़ी जान पहचान बढ़ाए, फिर आप दूसरे दिन गए, जब लोग कंफर्टेबल होंगे ना आपके साथ में, देन दे विल स्टार्ट शेयरिंग, और आपको पता भी नहीं चलेगा। दीज आर ओनली गाइड्स। अब आप ये बोलेंगे कि यार सीक्वेंस में पूछना है, नॉट नेसेसरी। ये सीक्वेंस आपका द वे योर इंटरव्यू विल गोइंग टू टेक whatever the direction, but आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप वो कैप्चर हो रहा है, लेकिन आप स्टार्ट टाइम से भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। You have asked very essence same and दूसरी तरीके से same ही क्वेश्चन पूछा है। Let us say somebody asked me write the same code. Might be I will get irritated that why are you asking same thing again and again.
My question, the way I'm asking question is very different. That is the case, but as an interviewer, I am also getting the same. So in that way, that is what I said. क्या बच्चे की तरह बच्चे हुए तो भी नहीं हम बच्चों का करते जी हाँ आगे वाले क्वेश्चन के अंदर वो पहले उनको बता चुका होता है। देखिए वहां पे आपको सिर्फ नंबर्स पता चले। नहीं कई बार मैडम इधर ओपन एंडेड क्वेश्चन अग्री दैट इज व्हाट आई सेड। ये मेरा वर्जन है, हो सकता है जो आप क्वेश्चन बनाए उसमें 10 ही क्वेश्चन रखने चाहिए। इट्स सिंपली रिस्पोंडेंट फटीग की तरफ अगर रिस्पोंडेंट फटीग उसका भी ध्यान रखने। वेट वेट Ma'am is asking about respondent fatigue, so let me answer on that part. What I said, पहली बात कोई भी आपको इंटरव्यू देने के लिए तब तक रेडी नहीं होगा जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। And let me tell you, you have to make them first of all very comfortable with you, then only they will open up. Otherwise, मैं आपको बताता हूँ कई बार जब आप इंटरव्यू लोगे ना, वो एक वर्ड में खत्म करेगा, yes no, that won't serve my purpose. इसीलिए मुझे पहले जान पहचान बनानी पड़ती है। आई हैव टू मेक पीपल, एक ट्रस्ट फैक्टर मुझे जनरेट करना पड़ेगा कि आप जो मुझे इंटरव्यू दोगे ना बड़ा सेफ है, आपकी बात मुझ तक ही है और ये आपकी क्वेश्चन ये आपके लिए गाइड है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से पूछते हैं। तो दिस इज एन आर्ट ऑफ द रिसर्चर और यू कैन से द इंटरव्यूअर हाउ ही और शी इज टेकिंग द इंटरव्यू, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी रिलायबिलिटी भी चेक हो रही है, वैलिडिटी भी आपकी साइड बाय साइड चेक होती चली जाएगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई जस्ट मेक इट एग्जॉस्टेड, कई लोग इतना नहीं बनाते, बट आई मेक वेरी एग्जॉस्टेड ताकि कोई भी आंसर क्या होता है कई बार जब मैंने इनिशियल इंटरव्यू देना शुरू किया इतने क्वेश्चन नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे लगा बात करते करते दे टॉक्ड अबाउट समथिंग मोर। तो एक नेचुरल कोर्स होता है एक्शन का, व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद समबडी, कन्वर्सेशन होती है, कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो आपकी गाइड में भी नहीं होती हैं, उसको भी नोट डाउन करते हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए एक राइटिंग है, आपके रेफरेंस के लिए है कि आपको ये गाइड करेगा कि ये चीजें मुझे जाननी है। तो बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी भी हैं जो आपको डायरेक्टली आपके रिसर्च के लिए हेल्पफुल, they are not directly helpful for your research, but they will be helpful to know your respondents. And till the time you don't know your respondent, what research you will do? Are you getting my point? What I'm trying to say? This is one thing. ये एक आपको सैंपल मैंने दिखाया, इसके बेसिस पे हमने काफी सारी चीज निकाली है। आई शो यू कि हमने क्या क्या चीज निकाली थी ताकि आप कनेक्ट भी कर पाए। हाँ जी मैम। Yes. For a page or a 100 words or a 150 word concept, क्या लानी क्या करना, that question उससे देखेंगे ना, तो हमको one module, two module, three module तो स्केल तक मुश्किल है। People go on telling many more things. आप एक एक क्वेश्चन के उससे सारे आप का एनालिसिस का पढ़ेगा। मतलब ऊपर के क्वेश्चन तो यस नो भी है और बहुत शॉर्ट है, कुछ वन वर्ड के हैं, लेकिन जो काफी क्वेश्चन आपने डाले हैं वो बहुत लेंथी है और काफी उससे भी मतलब वो बता रहे हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसको बता रहा है। I tell you, कई बार जब आप अपना क्वेश्चन ये तो बहुत रिफाइंड वर्जन है। तो जब मैंने देखा कि बार बार जब आपसे मांगा जाता है क्योंकि एज क्या है, उनका क्या क्वालिफिकेशन था, तो यू नीड रिस्पोंडेंट प्रोफाइल एंड फॉर दैट रीजन आई हैव केप्ट इट, दैट्स वन थिंग। और आपने बोला था कई बार ऑनलाइन चीजें बोलते हैं, दैट इज व्हाई यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स, आप नोट्स बनाते हैं। कोई बहुत सारी चीजें बता रहा है, देखो राइटिंग, दैट इज व्हाट आई सेड। इंटरव्यू कभी भी एक आदमी के आप कई आदमी है ना,
That's fine. That is the beauty of qualitative research ना. I want to know your experience ना. लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं वो सभी से मैं बात करूँ, वहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटीज आएंगी कि नहीं आएंगी? बहुत सारी डिसिमिलरिटीज भी हैं, पर देयर आर लॉट मेनी सिमिलरिटीज आल्सो दैट इज गोइंग टू कम. लेकिन हर एक की जर्नी क्या है ना, डिफरेंट. अब ये आपको पेपर में यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें स्पिलओवर यूज करा है. आई एम जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू द एनालिसिस पार्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेट मी जस्ट डाउनलोड इट. Could you see this? Yes, already open. ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने इसके लिए यूज किया था स्टडी के लिए. You could see this. तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ली है ना वो सब यहाँ से आई है. लास्ट में then we keep on figuring out कि कहाँ से मिलेगा. अब हम यहाँ पर आते हैं आगे. अब आपके आपके ये हमारे थीम्स निकल कर आए थे, राइट? अब आप देखिए यहाँ पे हमने निकाला इश्यूज एंड चैलेंजेस इन मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस ड्यूरिंग कोविड. अब यहाँ पे हमने बोला इश्यूज एंड चैलेंजेस भी क्या है, निकलकर उसके आउटकम क्या है. तो अब देखिए ये हमारे जो थीम्स हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन में ये सब चीज निकल कर आई है. ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज वर्कलोड, increased workload during pandemic, shared financial responsibility, impact on mental and physical health, extended work hours, support system from organization, increased cases of conflict at home and work, and last low morale and job insecurity. और आउटकम क्या है? लो वर्क लाइफ बैलेंस, लो प्रोडक्टिविटी, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल मेंटल वेलबींग, हाई इंटेंशन स्ट्रिक्ट क्वालिटी. आपने जो क्वेश्चन देखे और आप ये सब कोविड से निकल कर आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि काफी हद तक ये चीजें ऐसी है जो हम सब एक्सपीरियंस किए? तो जिस और इसके बाद आप देखिए हमने क्या करा है यहाँ पे. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ देम. मैम जो आपका क्वेश्चन था वो जो उनके कमेंट्स होंगे ना, वर्बेटिम जो होते हैं, वही एविडेंस होता है कि आपने जो चीज निकाली, आप कैसे कह रहे हैं ये चीज निकल कर है, उसका कोई सपोर्ट तो होगा. आपने बोला कि ड्यूअल वर्क लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उन्होंने बोला जैसे कहीं तो बोला था कि मैनेज योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ देम, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी. If you are working, that is addition to your responsibility. Does not exempt you from your role as a wife, mother, and so on in your home. It's a woman. It is a woman's job to balance both office and work at times that get work life and think of putting my time. क्या ये हमारे दिमाग में नहीं आता? ये किसी ने जो बोला है ना वही हमने यहाँ पे दिया है, रिफाइन कर दिया है बस. Even female things and So it becomes hectic to manage both work during a pandemic. You stay occupied, lot of work the entire day. I have to finish my household work from cleaning to cooking and whatnot early in the morning so that I can attend my office work. Jobs is either equally demanding, impacting the work-life balance and work. तो ये जैसे जैसे तीन आदमी आएंगे उसको वैलिडेट आप कहाँ से करते हैं? किस पार्टिसिपेंट ने आपकी जो कमेंट्स जो भी उन्होंने बात करी है आपने, तो जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, वो इंटरव्यू में से कुछ सेक्शन आपको निकालना पड़ेगा जो पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है. हाँ जी सर जी. कोरोना के टाइम पे भी हमारे टीम ही रिस्पॉन्स देंगे और आफ्टर कोरोना भी यही एक मिनट ऊपर जाइए. टीम क्या है? ये जेनरिक है जो निकल के ही आएगी, लेकिन इसके अलावा और भी तो चीजें निकल कर आ रही है, वो अलग भी तो है.
मेंटल वेलबींग की कभी बात नहीं हुई है। इंटेंशन से क्विट की इतनी बात नहीं होती, क्योंकि कई बार आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके के इनके वर्बेटिम है, ये चाहती भी घर जॉब छोड़ दो, लेकिन घर की EMI में हस्बैंड कितना करेगा? I want it, I have to, चॉइस नहीं है। तो देयर आर नॉट मेनी थिंग्स दैट कम। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने शेयर किए हैं। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड ऑन दिस पार्ट। अब काम आपका शुरू होता है। आप लोगों को जिस भी पर्टिकुलर एरिया में यू आर इंटरेस्टेड टू डू योर रिसर्च, आपको एक टेंटेटिव इंटरव्यू गाइड बनानी है, एक टाइटल आप देंगे रिसर्च का, और उससे अलाइंड आप ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन यू कैन मेक, ये आपका रेंज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पहला आप ये वाला कर लीजिए। उसके बाद मोनिका मैम ने आप लोगों को कुछ ट्रांसक्रिप्ट आपको शेयर करेंगे, ठीक है? उसको आपको क्या करना है, अपने ग्रुप के अंदर आपको बैठ के उसको एनालाइज करना है। हाँ जी। और वो जो है आपकी, वो जो वर्बेटिम्स है आपकी, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो है, आप उसको स्टडी करिए। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, वो सस्टेनेबल कंजम्पशन पे है, ठीक है? आप किस पे है वो आप देखिए, आप उसे पढ़ेंगे और आप उसे दो में बाइफरकेशन करेंगे उस चीजों को, मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स। थोड़ा काम और आसान करता हूँ आपको। तो मोटिवेटर डीमोटिवेटर्स में आपको बाइफरकेशन करना है। तो यू हैव टू स्टडी दोस ट्रांसक्रिप्ट, और आपको निकालना है, आपको कोडिंग करनी है लार्जली उसके अंदर। तो पहला है क्वेश्चनर बनाना है, दूसरा काम है आपको कोडिंग करनी है। तो पहला आप इंडिविजुअली करिए, जो आपको मैंने दिए ट्रांसक्रिप्ट, दो दो ले सकते हैं आप, या सारे भी कर सकते हैं, जैसे भी टाइम लगे आपको। और उसके बाद आप निकालें कि क्या मोटिवेटर्स हैं एज पर यू, और क्या डीमोटिवेटर्स हैं। और फिर आप अपनी टीम के साथ देखिए कि जो आपने आइडेंटिफाई किया, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितनी डिससिमिलैरिटीज हैं। तो वहां पे हम दो कॉलम्स बनाएंगे, पहले ओपन कोड करेंगे इंडिविजुअली, और उसके बाद हम एक में कोडिंग में जाएंगे, जहाँ पे हम सब मिलके उसको देखेंगे कितनी सिमिलैरिटीज कितनी डिससिमिलैरिटीज है। कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट? The question is ready for a topic. ओके, बना लिया? चैट जीपीटी यूज नहीं करना है? नहीं फिर ठीक है। Okay, so you prepare it and discuss in your team. I'll come to your discuss. You can just within a group and you can discuss. You have to give a title that what you would like to work, and then accordingly you have to frame some questions. Then we can see 10 questions बना ले। इसके अलावा दूसरा अपना भी टास्क है, जो आपको ट्रांसलेट करनी है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। And then I show you the actual thing. Yeah. And then also answer ये कह रहा है ताकि गेम में रखने से ऊपर से आवाज आती है मैसेज कितना बोल रही है लाइव नहीं हो रहा वो तो लगा हुआ
सरकार है कोई फायदा नहीं चलने दो
एंड देखो वैसा माइक भी आया था डेड वाला वो कहाँ पे यही तो वो खराब है, वापस नहीं हो। हाँ तो यही तो हैंड ओवर किया गया। अच्छा वो खराब है क्या तो बढ़िया हुआ है। बोलो क्वेश्चन करो जो के बीच में रखा हूँ ले जा सकता हूँ कौन क्या कर रहा है नहीं दादा लोग घर जाते हैं लोगों का आप पहले डॉक्टर नो करके हम सब मूवी को पकड़ते हैं देखिए एक होगी तो नाम है कौन सी आयुष्मान वाली ड्रीम गर्ल टू एलसीबी का तो छोड़ो अभी हम हमारे दड़ों का अभी मैं क्वेश्चंस बना रही है छोड़ तो कौन सी हम लेंगे
try to look for it. और there are some other advantages. तो इसमें आपका financial, non-financial, आपका behavioral, आपका आपके साथ भी कवर मतलब ये सब right. मतलब ये है कि जो पोल्यूशन है वो Correct. तो इन शॉर्ट ये कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक कार का लिया इसी तरीके से कोई क्वेश्चन करेंगे आपके तो जो कई बार क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट इंटरव्यू तो दैट टाइम यू माइट बी लुकिंग फॉर मोर इनसाइट्स कि अच्छा ये क्वेश्चन बैगन में ये भी पूछने पे आ जाता है तो देन यू कैन डिवाइड इट इसी के लिए हम ये गाइड करते हैं तो आंसर क्या करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेंगे तो भाई हम ये करना चाह रहे हैं इस तरह से हमारे क्वेश्चन वो थोड़ा सा वैलिडेशन होता है कि हाँ ये सारी चीजें आपके इसमें कवर हो जाए Definitely taking call. इसमें क्या होता है राजनीति क्योंकि हमें एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है जब हम इसको लाते हैं अभी तो लास्ट में जैसे अपनी हम लोग जैसे ऋतु द्वारा मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटेटिव भी मैंने किया है क्वांटिटेटिव भी किया है तो लास्ट में जैसे मेरा इंटरेस्ट भी है और मेरा इंडस्ट्री पे भी इंडस्ट्री पे भी मेरा काम है प्राइवेट सेक्टर पे कि इसमें कोई इंटेंशन क्या है मेरे को तो कॉलेज मुझे सर मेरा ये क्वेश्चन है मुझे परेशानी की Question क्या थी कोविड में तो क्या कोविड में कुछ नथिंग वर्क फ्रॉम होम आए हैं केवल नींद से रिलेटेड सर ये सब कोविड आने की वजह से लाइफ में जो चेंजेस आए हैं तो क्या वर्कर डालेंगे क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या कुछ पुरानी चीजें चल रही हैं या कुछ नई चीजें और आ रही हैं जैसे नई चीजें ऐड ऑन करते हैं जैसे वेलबींग मेंटल वेलबींग और आप वहाँ पता चला है कईयों ने बोला कि नहीं नेगेटिव ही नेगेटिव है लेकिन कईयों ने बोला कि नो वी गॉट टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम हॉबीज ये सारी काफी टाइम इन्वॉल्व है सबका एक्सपीरियंस मेरा सुनना पड़ता सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा ऐसा बोला कि नहीं बहुत टाइम बाद हमें अच्छा टाइम मिल रहा है कि ये कभी सुनेगा and I'm ready to get so many you can say different negative type of each other पहले नहीं मिल पाते मतलब ये कि कांग्रेस सिचुएशन जो क्रिएट की वजह से बहुत सारी नई चीजें लाइफ में हुई है जिससे कि मतलब बेहतर भी हुआ खराब भी हुआ तो वो क्या चीज है बहुत सारे बड़े पॉजिटिव आपका कुछ लोगों को फैमिली लाइफ में ज्यादा नहीं लड़ पाने एक वाला करेक्ट करेक्ट मतलब ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर ये भी हमने किया कि नेगेटिव आपकी क्या कुछ लोग बहुत ज्यादा टैक्सिंग था 2 घंटे ज्यादा 2 घंटे आना ज्यादा टाइम बच गया उनके लिए तो एक लोगों के लिए बुरा ये हुआ है कि उनका टाइम ठीक था पर उनका ऑफिस टाइम तो था ही सुबह 9 बजे से लेकर ना प्रोलॉन्ग पहले जब आप बिफोर प्रोग्रेस 8 आवर्स है ये 9 आवर्स है लेकिन उसके बाद लगता है घर पे बैठे हुए हैं और काफी नहीं कोई मीटिंग ही करिए नया आपका निकल कर आई चीजें मतलब एक माइंडसेट आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है बॉस को ऐसा लगता है अभी कुछ टाइम पहले सर बहुत को लग रहा था कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल है वर्क फ्रॉम होम हमें तो पैसे कम से कम बोलेंगे हमारा रेंट का बिल बचेगा तो ऑफिस डाउन कर दो और आप प्रोडक्टिविटी डाउन नीचे हो गई वो अलग से इशू
drafted it. Usually this is the way it has to be done. और अगर आप इनसे 4 लोग मिलकर अगर एक साथ काम कर रहे होते हैं वो adapted और drafted भी done. ये आप एक जने ने बनाया उसके बाद आप brainstorm करिए what are the questions that should be kept and what are the questions that should not be kept before administering this. और उसके बाद आप उसमें expert opinion भी ले सकते हैं कि this is the scope of our study and this is what we are intending to do. So whatever is done. And according to you can revise और जैसे pilot study करते हो तो pilot study में क्या करते हो पहले थोड़ा सा देखा लिया उसमें रन करते हो और उसके बाद फिर आप larger sample करते हो उसके बाद फिर आप final analysis करते हो आपको यही करना है कि पहले एक या दो इंटरव्यू दीजिए एक या दो इंटरव्यू देने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा भाई ये सारी चीजें हैं जो निकल कर आ रही है हमें राइट तो आपको ये चीज हमें स्विच करनी चाहिए ये चीज हमें ऐड करनी है ये चीज हमें डिलीट करनी है तो यू हैव टू गेट एन आइडिया जैसे ये चीज हमें ऐड करने की जरूरत है ये चीज हमें छोड़ने की जरूरत है क्योंकि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं एक्चुअल में तब आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कंडक्ट करके अच्छा ये स्लिप हो गया आई शुड इंक्रीज दिस तो जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो इन दैट यू शुड इंक्लूड दैट एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स right so this is how it works so this is the small exercise just to make you understand how it works got it have you understood it Yes. okay second वाली जो exercise आपको मैंने दी थी इसमें काम करने की कोशिश की उसको थोड़ा सा okay तो deciding a job this is not as a motivational lesson वो भी निकालना चाहिए आपको किसी ने आपकी ओपन कोडिंग की है ऑपरेटर से टर्नओवर में आपने जो ट्रांसक्रिप्ट दिए हैं उन ट्रांसक्रिप्ट में आप थोड़ा सा काम करिए ये करिए सभी ग्रुप्स के अंदर आपके पास जो है उनकी ट्रांसक्रिप्ट खोलिए ट्रांसक्रिप्ट के और उसमें निकालिए कि आपके अकॉर्डिंग आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके क्या मोटिवेट निकल कर आता है क्या डिमोटिवेट निकल कर आता है राइट ग्रुप में कर लीजिए इंडिविजुअल की बात है ग्रुप में कर लीजिए सभी में से ग्रुप में मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं ओके आपके अकॉर्डिंग एक निकल कर बना लीजिए कल मैंने छोड़े मैम का कॉल मैम वाला छोड़ने के लिए 4 मिनट में फिनिश करना है तो डिग्री कर देगा ओके
Okay. Okay, you just do it. So it is actually be done in this way. Respondent 1, respondent 2, 3, 4. Can you just see it? आपको हर एक के लिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा ऐसा जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, नॉट टू टेक राइट। तो आपने जो भी आपने बनाया तो रेस्पोंडेंट का नाम हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं क्योंकि आपके कोडिंग के लिए होता है, इसलिए हम रेस्पोंडेंट 1, 2, 3 जो भी आप नाम देते हैं। और अब देखिए इनके जो भी इश्यूज थे आपने निकाले और आपने ये सबके लिए किया है। ऑल द रेस्पोंडेंट हमारे एक्चुअल 18 से 20 रेस्पोंडेंट्स हैं, सबके लिए इंडिविजुअली हमने किया है। गॉट इट? ये हमने कर लिया। दिस इज हाउ आई हैव डन द कोडिंग। अब ये सारी चीजें मेरी निकल कर आ रही हैं, आपने जो निकाली है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मेरी जो बहुत सारे डॉक्टर श्वेता उन्होंने कोडिंग की है और जो मैं हूँ मैंने भी करी है, तो उन्होंने भी करी मैंने भी करी, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये क्या है? ओपन कोडिंग है। इसके बाद क्या होगा? हम एक्सेल कोडिंग करेंगे जहाँ पे सिमिलैरिटीज को क्या करेंगे? क्लब करेंगे और डिसिमिलैरिटीज को डिफरेंशिएट करेंगे। एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। आपने कोई रैंकिंग की है? नहीं, रैंकिंग नहीं है, जस्ट ये हमने क्रश कर दिया है कि हमारे अकॉर्डिंग जो है। तो आपने कुछ कुछ चीजें निकाली है, प्राइस, टेम्पर, ड्यूरेबिलिटी आपने निकाले हैं, तो सही है, वो है ठीक है। लेकिन इसको क्या करेंगे? क्लब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो 25 निकल कर आ रहे हैं, एक्चुअल कोडिंग 25 की नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें क्या है? रेपिटेशन है, ओवरलैप है। तो इस ओवरलैप को हम क्या करेंगे? हम क्लब करेंगे। तो सिमिलर थीम्स को क्लब करेंगे और डिसिमिलर थीम्स में भी क्या है? हम देखेंगे कि क्या उसको अलग सेपरेट बना सकते हैं। जैसे अच्छा बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी, तो ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी को हम क्लब कर सकते हैं, कर सकते हैं राइट। क्योंकि ड्यूरेबल तभी होगा जब उसकी लॉन्गेविटी। पॉइंट ये है कि दैट विल हैव टू क्लब द सिमिलैरिटीज। तो आपके यहाँ पे 3 हम कोडिंग की बात यहाँ पे करते हैं, जस्ट यूज दैट। तो आपने सबसे पहले इनिशियल कोडिंग की, तो अभी आप जो कर रहे हो इनिशियल कोडिंग है। इनिशियल कोडिंग के बाद आप सेकंड लेवल की आप कोडिंग करेंगे, या सेकंड ऑर्डर थीमेटिक आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं, और फिर आप फाइनल आपकी जो कैटेगरीज बनती है जिसे आप कैटेगरीज कह सकते हैं,
क्या आप फाइनल थीम्स कह सकते हैं? दैट यू कैन डू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपन कोडिंग से, फिर हम एक्सीएल पे आते हैं और उसके बेसिस पे हमारी फाइनल कैटेगरीज आपकी रेडी होती है। और उसके बाद जो आपकी थीम निकली है हम उसका एक इलैबोरेट डिस्कशन करते हैं। आई होप आई एम क्लियर दिस अप टिल दिस पार्ट। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो आपने इंट्रोड्यूस किए कंडक्ट, now you have according to you these are the motivators and demotivators for example। तो आप क्या करेंगे, अब आप उसको थीम को आप उसको डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, मेरा पेपर कॉलेज आपको दिया था उससे बोल दो। ऑलराइट, इसके अंदर हमने आईपी यूज किया है। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट पेपर विद आईपीए व्हिच आई यूज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू ऑल आर हैविंग पेपर्स विद दिस ड्राइंग इन एचईआई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज द पेपर। I answered this earlier, I will repeat it again. Till the time data saturation happens. Have you opened it? जब आप इंटरव्यू लेते रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई सेम चीज आ रही है। Shall we come to that part? अब आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे 25 टीचर्स को इंटरव्यू किया जो डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करती है, और यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी, कुछ कॉलेजेस में कुछ यूनिवर्सिटीज में। So findings suggest that they perceive whistleblowing as an instrument or mechanism which could help to curb wrongdoings and corrupt practices at their workplace. 5 categories identified. 5 कैटेगरी निकल कर आई हमारी। इनर वॉइस, पर्सनल मोरालिटी, ethical responsibility towards own work and society, gravity of the wrongdoing। ये लिटरेचर में टर्म है लेकिन ग्रेविटी नहीं है, सिवियरिटी ऑफ wrongdoing। तो ये मैं कैसे नॉर्मल पेशे देता हूं एज ए रिसर्चर, मेरे ऊपर डिपेंड है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ये नहीं था। ऑप्टिमिज्म अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज व्हिच आर द ग्रेट मोटिवेटर्स फॉर द टीचर्स इन एचईआई टू ग्रो द रिसर्च। ये हमने खाली इस पे बात करी है। यहाँ पे आपके डीमोटिवेटर्स भी काफी सारे हैं। ये काफी बड़ा पेपर था, अब इतने बड़े पेपर नहीं लिखता मैं, बिकॉज लार्जली अब ये कि यू हैव टू थोड़ा सा कंसाइज करके लिखें। पहले हमने बताया है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। आप देखिए लिटरेचर भी मैंने किया है, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखिए, the study is exploring perceptual behavioral intentions of the teachers and HRs towards whistleblowing and findings providing deeper insights towards their moral behavior in workplace is very much ignored। टीचर्स पे काम ही नहीं था टेक्निकली, and I can say that I have pioneered in this field, that I have worked on whistleblowing for teachers। The study will fill the gap in the literature about motivators and demotivators for whistleblowing in context of higher education in India based upon qualitative। तो क्वालिटेटिव पे कोई स्टडी है ही नहीं, टीचर्स पे कोई भी नहीं, तो आपका सैंपल पे आपका गैप हो सकता है, आपकी मेथोडोलॉजी पे गैप हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपने निकाला द करंट स्टडी ट्राइंग टू मेक एन अटेम्प्ट टू स्टडी द परसेप्शन वर्किंग इन हायर एजुकेशन रिगार्डिंग whistleblowing, मोटिवेटर्स एंड डीमोटिवेटर्स। लिटरेचर हमारा जो भी हमें मिला तो काफी सारी चीजें निकल कर आई, वो भी हमने यहाँ पे ली है।
मेथोडोलॉजी जैसे मैंने बताया आपको आईपीए मैंने यूज किया है इसके अंदर, और ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो आप इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट भी यूज कर सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन आईपीए। सैम्पलिंग अब आप देखिए, पहले मैंने इसको रैंडम ही निकाला है, यूजीसी की वेबसाइट से कितने टीचर हैं उसके यहाँ से मैंने निकाला, फिर उसके सैंपल के बेसिस में मैंने निकाला है, क्योंकि ये मैंने लिया है आपका नोएडा का सैंपल है, तो नोएडा में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक कितने, प्राइवेट कितने, कितने कॉलेजेस हैं, उसको ध्यान में लेते हुए मैंने सबके लिया। मैंने क्या लिखा है इसके अलावा, actually the directors of the institute and email inviting participation along with statement carrying ethics approval was sent to the participants. Instructions were given to the individual to contact the researchers directly if they are willing to participate. जबरदस्ती तो नहीं करा सकते हैं ना, वॉलंटियर आपको कराना पड़ेगा। और आपने बता दिया सारा, पार्टिसिपेंट को आपने स्टडी कर लिया। अब यहाँ देखिए 20 का रिस्पॉन्डेंट जिनकी एज ये थी, हमने सारा को बताया है, और यहाँ पे हमने ग्लाइडर भी लगाया है। क्यों? व्हाई डू यू थिंक? So they are sharing the pressure will never indulge in certain activities during. क्योंकि प्रेशर को पता ही नहीं होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, उसको मालूम ही नहीं है। तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, पता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, बिकॉज देयर इज द सिस्टम, दे नो अबाउट इट। तो जो बिल्कुल नया है उसे पता ही नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे राइडर लगता है कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू आर थरो अबाउट द सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ देखिए 15 पार्टनर्स आर एम्प्लॉयड इन प्राइवेट एंड प्राइवेट टीम एंड प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो हमने यहाँ से लिए। अब ये देखिए 45 मिनट्स का ड्यूरेशन हमने दिखाया। अब डेटा एनालिसिस का आप आ जाइए, 5 टीम्स आए। पहला क्या है, पर्सपेक्टिव, ये जेनेरिक है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि टीचर सोचते क्या है विसल ब्लोइंग के बारे में, तो अपने अपने विचार व्यक्त किए, मैंने वो सबको समराइज किया। तो एक ने लिखा था, एम आई नॉट सिटीजन, एम आई नॉट पेइंग टैक्सेस, द वेस्टर्न इंटरेस्ट एंड वाइडस्प्रेड करप्शन हैज टेकन इट्स टोल एवरीवेयर। और इसके लिए हमने क्वेश्चनर भी बनाया है और उसको पब्लिश भी किया है। तो एकेडमिक में विसल ब्लोइंग से रिलेटेड देयर वाज नो क्वेश्चनर, सो आई हैव क्रिएटेड दैट एंड दैट गॉट पब्लिश्ड आल्सो इन एमरल्ड का जर्नल है आपका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट, दैट्स अ Q1 जर्नल, तो देयर इट गॉट पब्लिश्ड। तो वहां पे हमने स्केल डेवलप भी किया, उसके बाद हमने उस पर टेस्ट भी किया। अब आप ये देखिए, ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था। तो इन्होंने ये बोला कि क्या हम सिटीजन नहीं है, इफ आई ब्लो द व्हिसल हु विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली एंड व्हाट विल हैपन टू माय करियर आफ्टर दैट। लोगों ने अपने बारे में बात करना शुरू की है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो उनके एक्सपीरियंसेस को समराइज करके, आई एम कोटिंग द रेफरेंसेस आल्सो, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैज बीन शेयर्ड लार्जली बाय ऑल द रिस्पोंडेंट्स। हाँ जी। Because once I am going through the paper, you have given the 5 motivators and 5 demonstrators. In front of motivator also you have stated the statement. yes. And again you are summarizing the. No. ये हमने बात करी है कि व्हाट इज द जेनेरिक परसेप्शन ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स विसल ब्लोइंग। तो ये आपका कमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। Later on, in this only. हाँ, I know. Right. I have done that. So we supposed to do that in the qualitative paper that you have to quote the references over there. ये मैं बहुत इनिशियल पेपर था, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने 3 वाइज पहले निकाले, जैसे आप देख सकते हैं, इनर वॉइस एंड पर्सनल मोरालिटी। फिर मैंने बोला कि लोगों ने क्या क्या, तो रेस्पोंडेंट 3 ने क्या बोला, 5 ने क्या बोला, 21 ने क्या बोला। तो आप देखिए जितने भी हैं सबके लिए मैंने एक एक चीजें लिखनी है, राइट। तो ये समराइजेशन था। हालांकि अब ये करने की जरूरत नहीं है, और फिर हम डायरेक्टली व्हाट आई डू, आई राइट अ थीम, I give a description and then I write the comments to substantiate whatever has been said. The other version that you have shown to us. उसमें, the COVID-19 one. Correct. Given the overall paper and. Right. तो लार्जली अगर आपको एक और मैं शेयर कर दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप पे जो नैरेटिव इंक्वायरी यूज हुआ है और जो विसल ब्लोइंग ऑफ नर्सेज है, उसमें मैंने सेम ही मॉडल यूज किया है। अब उसमें मैंने इसको थोड़ा सा वर्ड लिमिट इससे बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए नाउ दिस कैन बी रिमूव, और सिंपली आप थीम वाइज आप जा सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कमेंट्स लिखे हैं कि थीम 1 हमारा ये था, एंड दिस वाज द कैटेगरीज।
जैसे हमने बोला मोटिवेटर्स, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके से हमारा निकल कर आया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज पर द रेस्पोंडेंट, तो अब यहाँ पे मैंने डिस्कशन करना शुरू किया है कि व्हाट दे हैव सेड, और ये सारी चीजें हमने जब डिस्कशन करी है, तो देयर इंटेंट इज क्वाइट नोटिसेबल फ्रॉम द कमेंट। I have seen people, that means they want to blow the whistle or they don't want to blow the whistle. So whatever, I am not saying, whatever the interview से जो भी निकल कर आया, मैंने अपने क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने उनके ही वर्बटिम्स को यहाँ पे यूज किया। Yes, it is. It is. अब आप जनरली आप देखेंगे जो लास्ट जो पेपर लेटेस्ट मैंने शेयर किया है आपको, जैसे फियर ऑफ जॉब लॉस है, राइट? तो इसको आपने, ये आपका पहला एक थीम निकल कर आया, इस थीम को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, उसके नीचे आप ये सारे कमेंट्स दे देंगे। अब इसको थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है, थोड़ा वर्ड लिमिट भी से आपका हो जाता है, और उसका एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये 25 करेंगे। Twenty 25 ही है। अब आप ये देखिए दूसरा वाला डीमोटिवेटर, दिस इज हाउ इट हैज बीन डन, और उसके बाद फिर एक एक करके जो ऊपर था मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू किया, लेकिन मैंने वहां पे उसको रिपीट किया है कि इन्होंने ये बोला है, बट नाउ आई एम सब्सटैंशिएटिंग कि व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि दिस इज व्हाट इज बीन सब्सटैंशिएटेड, द फाइंडिंग्स रिवील कि क्या करते हैं इससे। अब डिस्कशन में ये हमारे दो थे, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अब यहाँ पर आपका इंटरप्रेटिव अप्रोच है। अब यहाँ पे मैंने जो भी सारी चीजें हमने करी थी उन सबको मैंने समराइज करना शुरू किया यहाँ पे, और मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखना शुरू किया कि मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या करती हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज हाउ इट इज बीन डन। तो ये काफी लेंथी पेपर है कंपैरेटिवली, बिकॉज इसको मैंने बेस पेपर बना कर रहा था, क्वाइट लेंथी पेपर, बट नाउ आई हैव चेंज्ड माय स्टाइल। So this is how it has been done. और लास्ट इज कंक्लूजन एंड द फ्यूचर स्कोप। अब यहाँ पे देखिए आउटकम सेल्फ सिलेक्टेड है, और इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज हाउ जैसे मैंने आपको बोला, फर्दर मोर आप इसको, और इसको कैन नॉट बी जनरलाइज। जनरलाइज आप लास्ट सैंपल में ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वांटिटेटिव आप करिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करिए, और आपको निकल कर आएगा वहां से। वो पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा दूसरा पेपर है, स्टडी ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो क्वालिटेटिव मैंने पहले किया है, क्वांटिटेटिव बाद में किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारे का सारा, हमने यहाँ पे पूरा नॉन पैरामेट्रिक टर्म्स लगाया है। ये सारी हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई है लिटरेचर के बेसिस पे। Please pay attention, and then accordingly, so you can see that these are the various hypotheses that we have curated. सैम्पलिंग आप देख सकते हैं, क्वेश्चन डिजाइन हमने यहाँ पे किया है, हमने इसके लिए बिगनेस डेवलप किए, अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि लार्जली जो विसिल ब्लोइंग की जो स्टडी हुई है वो हुई किस पे, अकाउंटेंट्स पे हुई, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स पे हुई है, लेकिन टीचर्स पे नहीं हुई है। तो बड़ा सी बात है, अकाउंटेंट का जो विग्नेट है आप उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने सिचुएशन बनाई है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, विग्नेट आप एक कह सकते हैं स्मॉल सिचुएशन। You are working as an assistant professor in a private institute where research publication is one of the strong criteria for performance appraisal. One day, while surfing research papers on internet, you came across a research paper authored by one of your colleagues, Dr. Sujata Verma, who is an associate in your institute. After reading it, you do not find it very good and doubt about its quality of being publishable. On inquiry, you discover that the journal which has published that paper is a. On further investigation, we find that Dr. Sujata has published many research papers in such shady and substandard journals.
On the basis we do not follow any review process and publish paper on the basis of these publications, the trial has received promotion in the past, which indicates that the authorities have not noticed the quality of their research work. This is a continuous practice which should follow just for getting good performance of the institute. ये एक सिचुएशन है, ये था रिसर्च, क्योंकि रिसर्च बहुत प्रोमिनेंट है, जहाँ पे बहुत ज्यादा रॉन्ग डूइंग है जो हमें लगा, एंड दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर्ड वन विग्नेट ऑन रिसर्च. दूसरा हमें लगा पैसे दो पास हो जाओ, एग्जामिनेशन में बहुत धांधली होती है. तो दूसरा हमारा क्या है, एग्जामिनेशन इंचार्ज है, तो सिचुएशन दे रहे हैं आपको. अब आपको क्या करना है, इन सिचुएशन के बेसिस पे विजिबल इंटेंशंस के क्वेश्चंस हैं आपके, और ये हमने कैसे पूछे ये भी बता देता हूँ. फर्स्ट पर्सन में और थर्ड पर्सन में, व्हाट यू विल डू, एंड इफ यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हाट यू विल डू. उससे क्या है, हमें ये पता चल जा रहा है उसमें कि जो फर्स्ट पर्सन में तो बोल रहा है मैं जरूर करूंगा, थर्ड पर्सन में करेगा कि नहीं, थर्ड पर्सन वाले भी तो तुम ही हो. तो विग्नेट बेस्ड स्टडीज जनरली वहां पे की जाती है जहां पे एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व होते हैं. तो दिस इज व्हाट वी हैव क्यूरेटेड. और जो तीसरा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, और ये मैंने लिया था कि कर्नाटका बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का केस था जहां पे आपने प्रमोशन किया है बट दे वर नॉट एलिजिबल, और कोर्ट केस के बाद एंड दे वर रिमूव. तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए. तो हमने जो रॉन्ग डूइंग्स के एग्जांपल्स लेते हुए वी क्यूरेटेड 3 विग्नेट्स, और फिर ये हमने एडमिनिस्टर किया था, उसके बेसिस पे निकल कर आए हैं. और मेजरमेंट एरर में जानने के लिए देखिए, हमने सोशल ऑर्डर डिजायरेबिलिटी बायस हमने यहाँ पे चेक किया है. कई बार क्या होता है ना, लोग हाँ हाँ नहीं बिल्कुल विसल करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या बोलेंगे, दे माइट थिंक अदरवाइज. ऑर्डर इफेक्ट बायस की अगर हम विग्नेट को ऊपर नीचे करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 to 1 और 2 3 1, तो क्या उसका कुछ इंपैक्ट आएगा. हमने वो भी चेक करके देखा यहाँ पे. तो हमने ये सब चेक करके देखा, प्रेजेंटेशन से कोई फर्क पड़ेगा या कुछ भी होगा क्या. इसके लिए हमने ऑर्डर इफेक्ट बायस और सोशल डिजायरेबिलिटी बायस चेक किया हमने. क्वांटिटेटिव है, फॉर्मूला है ना सर. ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगे हैं क्योंकि नॉर्मल डेटा नहीं था जब हमने कलेक्ट किया है. तो वी हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट टू मेक इट नॉर्मल, जो कि लोग ज्यादातर करते हैं. क्यों करना है नॉर्मल आपको, पहले नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए हुए हैं ना, यूज दैट, नॉट मैन्युअल. अगर आपका विल्कॉक्सन टेस्ट है आपके पास अवेलेबल, तो जरूरी थोड़ी है कि सब में टी टेस्ट ही लगेगा या जेड टेस्ट ही लगेगा. अगर नहीं हो रहा है तो क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट भी तो लग सकता है ना, विल्कॉक्सन भी तो लग सकता है. मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट गिवन है तो नॉन पैरामेट्रिक ही तो है. क्यों दे रखे नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि डेटा नॉर्मल नहीं है, तो यूज दैट. So that is what we have done, and this is what we have done well ultimately. और ये देखिए ये सारे हमारे निकल कर आए. तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो आपने काम किया क्वालिटेटिव में, मैंने उसको यहाँ पे क्वांटिटेटिव में भी किया है, और उसका डेटा सैंपल साइज काफी अच्छा खासा है, राइट. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देयर इज अ वेरी गुड नंबर, और ये सारे हमारे थे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर. इन शॉर्ट अब इस स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, दिस स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड. यस, दिस कैन बी जनरलाइज्ड क्योंकि लार्जेस्ट सैंपल साइज है और आपने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट किया है. तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं. रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं आएगा अगर स्टडी सही तरीके से की गई है तो. अभी सॉर्टेड. अब यहाँ पे हमने अपनी लिमिटेशन भी लिखी है. पहली लिमिटेशन थी कि हमारे पास कोई भी प्री टेस्टेड विग्नेट्स नहीं थे, तो ये हमें क्रिएट करने पड़े. तो ये हमारा एक वैल्यू एडिशन है. आप कोई भी अगर आप में से दोबारा से विसल ब्लोअर पे स्टडी करना चाहता है तो आप इन विग्नेट्स को यूज कर सकते हैं.
और ये सिनेरियो स्टडी टेस्टेड विद डिफरेंट सैंपल्स शुड बी यूज्ड इन फ्यूचर टू हैव मोर रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स। तो अब आप इसे करके लेके जा सकते हैं, बट हमने इसको क्या किया, हमने इसको वेरीफाई भी कराया है, हमने टेस्ट भी कराए थे हमारे यहाँ पे जो कलीग्स थे कि व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू फील, वी रिवाइज्ड इट एंड देन वी हैव फ्लोटेड इट। तो देखिए क्वालिटेटिव से भी चीजें निकल कर आ रही हैं, क्वांटिटेटिव से। तो क्वांटिटेटिव में आप देखिए कि सेट वेरिएबल है, अब मैं इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही स्टडी कर पा रहा हूँ, लेकिन क्वालिटेटिव में आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाई दे आर डूइंग सो और व्हाई दे आर नॉट डूइंग सो। तो यहाँ पे बता रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे इसमें निकल कर आया कि अगर आपका जो रॉन्ग डूअर है वो बहुत स्ट्रांग है तो विसल ब्लोइंग नहीं करूंगा मैं, ठीक है, इसका सिर्फ आंसर ये आया है। तो मैंने एक अजम्पशन में देखी, उसमें ये निकल कर आया है, तो दिस माइट बी प्रोबेबल रीजंस कुड बी दिस। लेकिन क्वालिटेटिव में तो आपका रेस्पोंडेंट खुद ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसी रॉन्ग डूइंग होती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ब्लो विसल और नॉट ब्लो विसल बिकॉज ऑफ दीज रीजन। यहाँ पे सेट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर उसके पास स्कोप नहीं है कुछ भी लिखने का, लेकिन वहां स्कोप है बोलने का। तो जब आप इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, जिसे आप कहते हैं मिक्स मेथोडोलॉजी, तो दैट एनरिचेस योर स्टडी मोर एंड यू गेट बेटर इनसाइट्स, राइट? So this is about IPA, which I tried to discuss. Yes, ma'am. जैसे अभी आपने कंटेंट एनालिसिस को पढ़ी, क्वालिटी एनालिसिस क्या है? अब क्वालिटी एनालिसिस अगर उनको टेस्ट करना है क्वालिटी एनालिसिस देखिए जनरली क्वालिटेटिव के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाते। जनरली आप क्या करते हैं, सपोज करिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम कई बार जैसे ट्विटर वगैरह पे जाते हैं, वहां से हम देखते हैं कि लोग किस तरीके क्या ट्वीट कर रहे हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसा है लोगों का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, पॉलिटिकल माइंडसेट कैसा है। आई वांट टू नो दैट, व्हाट आई विल डू, मैंने दिया और मैंने उस पर्टिकुलर डेट से दूसरी डेट तक मैंने पूरा उनका ट्वीट्स का डेटा निकाला और हम उस पर क्या करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस रन करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे लाजमी कि हम उसके अंदर थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट लार्जली पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे आपने अभी कमेंट्स को वो निकाले थे ना, कोडिंग कर रहे थे, ऐसे वहां पे भी करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े जैसे, या आपके पास कमेंट्स आ गए, तो एक ने लिखा कि हाँ दिस पार्टी शुड विन, अदरवाइज दिस विल हैपन और दैट विल हैपन। तो आप जब ये पढ़ना शुरू करोगे तो लार्जली आप देखोगे कि यू कैन क्लस्टर इट, कर सकते हैं अंडर सर्टेन हेड्स। तो वो हम सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू वी कैन डू दैट। उसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, वी कैन डू दैट। हाँ जी सर आपने टीटी डिलीट बनाया कि हम अपना पेपर कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव और भी डिलीट। देखिए जनरली इसमें रिव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्यों बनाए। तो हमने इसका जस्टिफिकेशन दिया है क्योंकि मैक्सिमम जो स्टडीज हुई थी इस पे वो हुई है अकाउंटेंट्स पे, टीचर्स पे कोई स्टडी अवेलेबल ही नहीं है, तो विग्नेट भी नहीं है, इसलिए हमने बनाए। और फिर हमारे जो रिजल्ट्स आए वो वेरीफाई हुए, तो अब इनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है विग्नेट्स को, बिकॉज नाउ दे आर टेस्टेड। क्योंकि उसका रीजन है, मैंने 3 क्यों लिए, बिकॉज दीज आर द एरियाज ऑफ द बेस। अगर आप पूरा पेपर जब आप इसे पढ़ेंगे तो लार्जेस्ट का वेरिफिकेशन हमने जस्टिफिकेशन दिया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी थी इसके लिए, बहुत सारे जजमेंट्स देखे थे। लार्जली जो 3 एरियाज हैं सबसे ज्यादा ग्रेव है, एग्जामिनेशन, रिसर्च, और वही आ रहे हैं देख लीजिए आज की डेट में, ठीक है, और तीसरा आपका। तो हमने जो 3 इसी वजह से लिया यहाँ पे विग्नेट्स कि भैया कोई एग्जामिनेशन का कोई हेड है, कोई उससे ले कोई प्रमोशन हो रहे हैं अनबायस तरीके से, तो ये भी तो रॉन्ग डूइंग है ना, बायसनेस इज आल्सो रॉन्ग डूइंग। जो डिजर्विंग है आप उसको तो प्रमोट नहीं कर रहे हो, और जो डिजर्विंग नहीं है उसको प्रमोट कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजों को लेते हुए दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट 3, राइट? तो अपनी मर्जी से नहीं बनाए, देयर इज अ रैशनल बिहाइंड इट, Depends upon the study. यस डिपेंड्स ऑन द स्टडी। क्योंकि आप रॉन्ग डूइंग की बात कर रहे हैं तो आपको एकेडमिक्स में भी वो एरिया निकालना पड़ेगा जहाँ पे लार्जली इस तरीके की स्टडीज हैं। अगर आप देखें बहुत सारे लिंक्डइन में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे इंडियन रिसर्च वॉचडॉग है उसकी आती रहती है, बहुत सारी रिपोर्ट आपकी वैसी भी है जो कहती है कि इंडिया इज अ मिल ऑफ शेडी जर्नल्स। और आप देखते हैं क्या बोला कि यूजीसी की लिस्टेड में ही करिए आप या स्कोपस इंडेक्स में करिए, उसके पीछे रीजन है ना, बिकॉज पीपल आर पब्लिशिंग इन शेडी जर्नल्स।
आपका ब्रांड इमेज इंस्टीट्यूशन का भी खराब होता है, आपका कंट्री का भी खराब होता है, और पेपर रिट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपने देखा चाइनीज जर्नल के, चाइना कंट्री के 19,000 समथिंग जर्नल्स लास्ट ईयर रिट्रैक्ट हुए हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट ने, इसमें मिनिस्ट्री ने एक्शन ले लिया है कि या तो तुम खुद ही बता दो किस किस के पेपर रिट्रैक्ट हुए हैं और रीजंस क्या है। अगर ऐसा पाया और जिसने नहीं डिस्क्लोज किया, जिसका मतलब ये है कि रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि पेपर पब्लिश हो गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसको क्या कर दिया, रिट्रैक्ट कर दिया है, मतलब अनपब्लिश कर दिया है। और उसमें क्या होता है, पेपर पब्लिश है और साइट पे भी रहेगा, उसमें लिखा रहेगा रिट्रैक्टेड, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंसल्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। और एकेडमिक फ्रेटर्निटी में अपना नाम भी खराब होता है कि आप इस तरीके के काम करते हैं, राइट। तो दीज थिंग्स, तो इसी वजह से तो रिपोर्ट जब निकली तो उसमें जो मेजर ग्रेव एरियाज थे वी टुक दैट, और उसके बेसिस पे फिर हमारे 3 हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज व्हाट वी मेड। There's a logic behind everything. Research is all about logic. There's a sequential logic that why you want to say anything, right? So I think we can stop here. Grounded theory, somewhere, sometime else I will take. Just if you just allow me 5-10 minutes, ma'am, I'll just finish the last one. Okay, this is the qualitative research paper writing पे है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 slides हैं. I'll quickly just go through it. So this will guide you through the key steps involved in conducting structuring a high quality qualitative study. The research question, from defining the research question to ensuring rigor and trustworthiness. देखिए कोई भी रिसर्च आप करते हैं ना, उसके अंदर रिगर का होना बहुत जरूरी है. I hope you all understand the meaning of rigor, right? So rigor is very essential. That's one part. Second is trustworthiness. बहुत सारे पेपर इसलिए आपके रिट्रैक्ट होते हैं या रिजेक्ट हो जाते भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है कि डेटा आपने फॉल्सिफाई किया है, डेटा मैनिपुलेशन किया है. और क्योंकि अब आप देख रहे हैं आज के डेट में सिनेरियो में और टेक्नीशियंस भी नो, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप, जैसे आपको बताता हूँ, एक लिस्ट निकाली थी जिसके अंदर था कि देयर आर फ्यू रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैव पब्लिश्ड 224 रिसर्च पेपर्स इन एन ईयर. अब आप सोच के देखिए, इतने तो, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उससे ऊपर है, 250 प्लस भी है. इसका मतलब ये कि पूरे साल भर में आपने कोई काम नहीं किया, दिन रात सिर्फ आपने रिसर्च ही करी है, अभी आप पब्लिश है. तभी नहीं है ना, क्योंकि दिन में, क्योंकि साल में छुट्टियां भी होती हैं, 365 दिन ही होते हैं. All right. Okay. So my quick tips will be to everyone for the qualitative research, whosoever is interested. First is start with a clear focus. Your focus needs to be very, very clear what you want to research upon. Identify a specific, well-defined problem or topic that you want to explore in depth. Second, consider context. Context के according चीजें बदल जाएंगी. Like for example, there is a scholar which came under me. अभी इसका initial topic था work-life balance, if I'm not wrong, work from home performance of employees in IT sector during COVID and post-COVID. अभी तक उसने स्टार्ट भी नहीं किया है काम. अब आप मुझे बताइए क्या ये कंटेक्चुअली सही होगा टॉपिक, क्योंकि कोविड इज, तो आपका टॉपिक का रेलेवेंस तो पोस्ट कोविड रह गया. So you have to modify it. So you have to be mindful also that kind of topic you are taking. That means the context and the relevant background information that may inform you for your research. Next is refine and refocus. Continuously refine your research questions to ensure it is answerable and aligned with your studies goals. इसीलिए वो एक्टिविटी मैंने आपको कराई है. You have to continuously refine it. वो कैसे होगा? इंटरैक्ट करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, एक इंटरव्यू करिए, आपको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, फिर इनपुट्स मिलेंगे. Keep on adding it. But make it better, make it rich, make it clear. So this is how. Why did it happen? What do you think we'll do about it? When does it happen? How do you understand? What do you expect to happen? What do you do when you can't get this kind of positive experience with? What is most important
use when you using this product service? For example, this is the kind of question that comes in. Already I have talked about it. आप जो भी methodology start करते हैं या study करते हैं, please be mindful there has to be a justification to be given. कई सारों को पता ही नहीं होता है, जैसे there are, I'm show you the comments. कई बोलेंगे कि बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है, लेकिन एक दूसरा बोलेगा बिल्कुल खराब मेथोडोलॉजी है. लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको अपना आंसर रेडी करना पड़ेगा. दैट मींस जस्टिफिकेशन हैज टू बी रेडी व्हाई यू आर चूजिंग फिनोमेनोलॉजी. हो सकता है आपने जो टॉपिक लिया उसके लिए मोर आप क्या हो, और तो यू हैव टू फर्स्ट डू योर होमवर्क वेल बिफोर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक. क्या क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे. डेटा कलेक्शन लार्जली हम ये यूज करते हैं, लेकिन फोकस ग्रुप का कुछ चैलेंजेस हैं. हर एक इसके अपने कुछ प्लस एंड माइनसेस हैं. इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे रेस्पोंडेंट एक साथ मिल जाते हैं या नहीं मिलेंगे. तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन के बाइसेस के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं. डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या है कि आपका सब सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, तो आपको रिव्यू बोल सकता है कि भाई प्राइमरी डेटा भी थोड़ा सा कलेक्ट करिए. So you have to even make sure that your data collection methods are appropriate. So individual या qualitative surveys आपको करने हैं या focus exercises करने हैं, whatever you want to do, you have to be mindful about it. Data analysis strategies जैसा मैंने बताया, पहले क्या करना पड़ेगा? Coding. Systematic labeling and categorization of data to identify themes and patterns. तो आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने कोडिंग करी, कोडिंग के बाद आपने क्या बनाया, कैटेगराइजेशन किया, उसके बेसिस पे आपकी क्या निकल के आएंगी, थीम्स निकलते हैं, पैटर्न्स बनते हैं. इंटरप्रेटिव एनालिसिस एक्सप्लोरिंग द डीपर मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल पैटर्न्स विद इन द डेटा. डेटा बहुत कुछ बोलता है, लेकिन यू शुड नो हाउ टू रीड डेटा. मेमो, हम मेमो रेडी करते हैं कि अच्छा हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया, हम उसको नोट करते हुए चले जाते हैं. हाँ जी. आप समझ भी रहे होते हैं, आपको नोट डाउन भी करना होता है. बिल्कुल लिखिए, आप अपने जो भी आपको नोट्स लेने हैं आपको लेने हैं, बिल्कुल बायस नहीं है. जो उसने बोला है आप उसे नोट करिए. मुझे बोल रहे हो तो आप सुन रहे हो ना, आप उसे नोट डाउन करते जा रहे हो. जब आप वापस आओगे फील्ड से तो आप उसे क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे ना. जो इंटरव्यू आपने लिया है कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसको क्या आंसर उसने दिया है, तो यू आर नोटिंग इट डाउन. ये रिकॉर्ड भी करते हैं अगर परमिशन के साथ, उतना ही कर रहे हैं. एनालिसिस आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, दिस इज व्हाट पर्सपेक्टिव ही इज हैविंग, या दूसरे से आपने बात की होती है दिस इज द पर्सपेक्टिव दिस पर्सन इज शेयरिंग. तो कहने मतलब ये है, आपको एनालिसिस समझ में आएगा उस टाइम पे कि अच्छा लार्जली लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, या ये चीज इग्नोर की है, ये कम लोगों ने बात करी है. You will go to get insights. Writing reflective notes to capture ideas, insights, and connections during analysis जो आपका question. That has to be done. कैसे इंश्योर करें? Credibility के साथ. Employ strategies like member checking and triangulation to ensure that findings accurately reflect participant perspective. इसमें क्या करिए? आपके साथ साथ आपके जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो भी तो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी कोडिंग कर रहे हैं. तो जब आप एक साथ जब आप उसे कर रहे हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, तो आपको पता चलेगा कि कितना रेलेवेंट है. जैसे अगर आपका डेटा रिलायबल है तो क्या होगा, चाहे आप उसे रन करें चाहे कोई दूसरा रन करे, रिजल्ट वुड बी सेम. ट्रांसफरेबिलिटी, providing the description to enable readers to assess the applicability of the findings to their own context. जरूरी नहीं है कि कोई स्टडी अगर इंडिया में हुई है तो दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं है, हो सकती है. मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं उसके लिए, राइट. लेकिन जनरलाइजेबिलिटी नहीं होगी. रिलेटेबिलिटी हो सकती है लेकिन जनरलाइजेबिलिटी नहीं हो सकते. डिपेंडेबिलिटी, मेंटेनिंग एन ऑडिट ट्रेल एंड एंगेजिंग रिफलेक्टिविटी टू एंश्योर रिसर्च प्रोसेस इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल. दैट मींस कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली. जो इंटरव्यूज आपने किए, ट्रांसक्रिप्ट आपके जो है सब कुछ. अलाउ कंफर्मेटिबिलिटी, demonstrating that the findings are shared by the participants and not researchers by. And last,
Introduction, methodology, findings and discussion. This is the largest section. Papers आपके पास है मेरे. So you can have, so largely हर जगह का यही आपका एक format होता है. And this is how it has to be done. What is the context? How does it fit in with other research on the topic? What is the research question? तो gap को identify बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको. What was the answer to the question often shown? तो आपको क्या है? ऊपर tip to bottom, top to bottom, everything has to be aligned. ऐसा नहीं जो कि ऊपर कुछ कह रहा है, नीचे कुछ कह रहा है. उसी पे रिव्यूअर्स क्या करते हैं? कमेंट लगाते हैं कि भैया ऊपर तो तुम ये कह रहे हो. Downstairs it is like this. So why? Material the author cited when writing the paper. So why? करना क्यों है? Why you want to do it? यही क्वेश्चन होता है ना रिव्यूअर का. गैप पे जब वो लगाता है कि गैप इज नॉट हाईलाइटेड प्रॉपर्ली, उसका मतलब क्या है? Why is not there? सेकेंड, कैसे करा आपने? तो प्रोसेस बताइए कि हमने इतने लोगों को इंटरव्यू किया, हमने ये स्टेप्स फॉलो किए. हाउ? नाउ व्हाट were your questions and the kind of answer that you got, and finally, so what? मिला तो क्या करना है इसका? अब हम उसका एनालिसिस करके अब उसका डिस्कशन लिख रहे हैं. समराइज की फाइंडिंग्स, हाईलाइट योर कंट्रीब्यूशन कि क्या कैसे वो स्टडी आपको हेल्पफुल होगी. क्वालिटेटिव स्टडी हमें फिनोमेना बताती है कि कुछ लोगों का ये सोचना है या लोगों की सोच ऐसी है. दिस इज हाउ पीपल थिंक, दिस इज हाउ पीपल बिहेव, दिस इज व्हाट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ द पीपल. और इसमें जितना डाइवर्स सेट होता है उतना बेटर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलते हैं तो आपकी स्टडी उतनी एनरिच होती है. प्रपोज फ्यूचर डायरेक्शन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो थैंक यू. So I hope you guys help you. I'm going to actually need to decide whether to go for qualitative or quantitative. Great. That would be better. So I hope like whatever the little knowledge I'm having, I'll just try to share it in the given time period. So thank you very much.